ہم جالندھر سے لگ بھگ 7 میل پہلے واقع فیروز گاؤں کے قریب سڑک کنارے واقع پولیس ناکے کے قریب پہنچ رہے تھے، جہاں سب گاڑیوں کو روکا جا رہا تھا اور پولیس اہلکار سواریوں کا جائزہ لے کر گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر گہری تمکنت اور خود پسندی کے آثار طاری کر لیے۔ ہماری باری آنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ شانے پر 303 رائفل لٹکائے ایک بھاری جسم کے سنتری نے پہلے ظہیر پر اور پھر مجھ پر نظر ڈالی۔ میں نے جواباً ناراضی سے اسے گھورا۔ اس دوران وہ ظہیر سے پنجابی میں سوال کر چکا تھا، کدھر آئے ہو سرکار، کدھر کا ارادہ ہے؟ ظہیر کی بجائے میں نے جواب دیا۔ میرے لہجے میں میرے مرتبے کی گھن گرج نمایاں تھی۔ میں نے کہا، سنتری جی ادھر آ کر بات کرو، یہ بتاؤ تمہارا کب تک شریف لوگوں کی راہ کھوٹی کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ ناکہ بندی کا سیاپا آخر کب تک چلے گا؟ سانپ نکلنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مٹھو سنگھ کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کی ٹولی تو تم لوگوں کی کھچائی ہونے سے پہلے ہی جانے کب کی جودھ پور یا جیسلمیر پہنچ چکی ہوگی۔ میری سخت سرزنش سے سنتری بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی بجائے ظہیر مجھ سے مخاطب ہوا۔ بولا، ناراض نہ ہوں کنور جی، یہ تو ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہے، انہیں کون سا راہگیروں کو تنگ کر کے خوشی ملتی ہے۔ اس پر میں نے مربیانہ لہجے میں ظہیر کو مخاطب کیا۔ مجھے پتا تھا تو پولیس والوں سے ہمدردی جتانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دے گا۔ آخر تیرا باپ بھی تو حوالدار بن کر ریٹائر ہوا تھا نا، تو بھی 2-4 جماعتیں پڑھ لیتا تو سنتری لگ ہی جاتا۔ ظہیر نے میرا ناٹک آگے بڑھایا، بولا، کوئی پرواہ نہیں کنور جی، آپ کی سیوا میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس دوران میں ہم دونوں کے مکالمے سے لطف اندوز ہوتا سنتری ظہیر کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ ظہیر نے اشارے سے سنتری کا شکریہ ادا کیا، البتہ کنور جی نے سر ہلانے کی بھی زحمت نہ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے دل ہی دل میں اطمینان کی لہر ضرور محسوس کی۔ ہم لوگ اپنی گاڑی کی ڈگی میں خطرناک اسلحے کا اتنا بڑا ذخیرہ لے کر جا رہے تھے کہ اگر پولیس والے کو ذرا سی بھی سنگن مل جاتی تو پنجاب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑیں لگ جاتی، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس اسلحے سمیت ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو شاید دلی تک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ ہم جیسے ہی ناکے سے آگے بڑھے، ظہیر کی خوش مزاجی لوٹ آئی اور وہ پھر چٹکلے چھوڑنے لگا۔ جالندھر سے آگے نکل کر ہم ایک بار پھر جی ٹی روڈ پر چڑھ گئے اور گاڑی کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ پھگواڑا اور ستلج دریا کے پل پر ہمیں ایک بار پھر پولیس ناکوں پر روکا گیا، لیکن محض شکلیں دیکھ کر آگے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ مغرب کے قریب ہم لدھیانے کے پاس سے گزرے، یہاں پولیس چوکی پر چند لمحے کے لیے روکا گیا، لیکن وہاں بھی ایک نظر ڈال کر روانہ ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اب ہم دونوں خود کو بے حد پر اعتماد محسوس کر رہے تھے۔ ظہیر کے چہکنے کا سلسلہ جاری تھا، تاہم میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ مسلسل چوکنا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کسی بھی خطرے کی صورت میں ایک لمحے میں ریوالور نکال کر گولی چلا سکتا ہے۔ تاہم اس روز اللہ جل شانہ ہم پر کچھ زیادہ ہی مہربانی پر تلا ہوا تھا۔ منڈی گوبند سنگھ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچنے تک ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہوئی۔ ظہیر نے گاڑی ناصر کی آڑت خانے کے پھاٹک کے سامنے روکی تو رات پوری طرح چھا چکی تھی۔ وہاں شاید بےتابی سے ہمارا انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ ظہیر کے گاڑی کے ہارن پر دباؤ ڈالنے کے چند ہی لمحوں کے بعد پھاٹک کھلا اور ناصر باہر نکل آیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے پورا پھاٹک کھول دیا۔ ظہیر گاڑی سیدھا لیتا چلا گیا۔ ہم جیسے ہی گاڑی سے نکلے، یاسر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر تجسس اور تشویش کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، مبارک ہو یاسر، اللہ کے فضل سے ہمارا مشن امید سے زیادہ کامیاب رہا۔ اس اثنا میں ناصر بھی پھاٹک اندر سے بند کر کے آ گیا تھا اور میرے الفاظ اس نے بھی سن لیے تھے۔ وہ پرجوش انداز میں ظہیر سے لپٹ گیا۔ آپس میں مبارکبادوں کے تبادلے کے بعد میں نے اور ظہیر نے ناصر کے ساتھ مل کر گاڑی کی ڈگی سے بھاری بھرکم بوری نکالی۔ وزن اتنا زیادہ تھا کہ دونوں ہٹے کٹے نوجوانوں کو بھی اسے اٹھانے میں اچھی خاصی طاقت صرف کرنا پڑی۔ بہرحال وہ دونوں اسے اٹھا کر گھر کی بیٹھک میں لے گئے اور ایک پلنگ پر سجا دیا۔ اس اثنا میں رخسانہ اور جمیلہ بھی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ ان سب کی نظریں لمبوتری سی بوری پر جمی ہوئی تھیں۔ بالآخر یاسر نے باقی اہل خانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے پوچھا، یہ تو بہت بھاری بھرکم لگ رہی ہے جمال بھائی، کون سا خزانہ اٹھا لائے؟ میں نے مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خزانہ ہی سمجھو۔ یقین مانو نظر پڑتے ہی جی للچا گیا تھا۔ اس کوالٹی کا ایمونیشن اور ویپن اب ہندوستان میں ملنا بہت مشکل ہے، اس لیے جتنا ہاتھ لگا سمیٹ لائے، مزید ہوتا تو وہ بھی لے آتے۔ ظہیر نے پرجوش لہجے میں میری بات آگے بڑھائی، بولا، منہ مانگی قیمت دی ہے جمال بھائی نے، خالص انگلش ساختہ اسلحہ ہے اور بالکل نئے جیسا۔
नासिर ने कदरे बेसब्री से कहा, तो भाई इंतजार क्यों करवा रहे हो? देखें तो सही क्या चीज है जिसने आप दोनों भाइयों के चेहरों पर खुशियों के रंग बखेर दिए हैं। मैंने पलंग पर बराजमान होकर कंबल में लिपटते हुए कहा, नासिर भैया हम बहुत धक्के खाकर आए हैं, ये नेक काम आप खुद कर लो। बोरी खोलकर यासिर भाई, रुखसाना और खुसूसन जमीला को दिखाओ कि हमने क्या तीर मारा है। माल पसंद न आया तो जुर्माना कबूल है। उन चचा भतीजे के अलावा दोनों लड़कियों के चेहरे भी तजस्सुस और इश्तियाक से चमक रहे थे। नासिर महारत और फुर्ती से बोरी के मुंह पर लिपटी मोटी सुतली खोल रहा था, फिर भी जमीला ने उसे हाथ चलाने का मशवरा दिया। नासिर रुक कर शायद उस पर कोई जुमला कसना चाहता था, लेकिन गालिबन अपने चचा और हम चारों की मौजूदगी के पेश नजर खामोश रहा। बोरी खुलने पर सबसे पहले एक दूसरे के साथ लिपटी शॉट गनों की जोड़ी सामने आई। नासिर ने उन पर गहरी नजर डाली और खाली पलंग पर लिटा दी, लेकिन जासिर ने बेताबी से उन्हें उठाया और अलग करके एक शॉटगन का जायजा लिया। बोला, यार ये तो वाकई इंग्लैंड मार्का है, इंतहाई नफीस और उम्दा साख्त की। दोनों लड़कियां भी निहायत दिलचस्पी से बंदूकों को देख रही थीं और उन्होंने भी शॉटगनों की जोड़ी की जाहिरी क्वालिटी और खूबसूरती को सराहा। इससे पहले कि वो शॉटगनों की मजीद तारीफ करते, नासिर ने स्टेन गनों का गट्ठा भी निकाल कर पलंग पर सजा दिया। मैंने यासिर समेत उन चारों के चेहरों पर हैरानी, जोश और खुशी के मिले जुले तासुरात देखे। नासिर बोरी को उसके हाल पर छोड़कर अब जल्दी जल्दी तीनों खुदकार हथियारों के बंधन खोलकर उन्हें अलग कर रहा था। उसने एक स्टेन गन यासिर को थमाई और दूसरी खुद लेकर शौक भरी नजरों से उसका जायजा लेने लगा। खाली स्टेन गन का लीवर खींच कर कॉक करने और शाने से लगाकर चलाने के बाद यासिर ने ख्वाबनाक सी आवाज में कहा, शानदार, लाजवाब, आप लोगों ने कमाल कर दिया। जमाल भाई, वाकई खजाना लूट कर ले आए हैं आप लोग, ये तो वाकई बिल्कुल नई है। नासिर ने उसकी तायद करते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, ये तो पिछली बार वाली गन्नों से भी ज्यादा खूबसूरत और नफीस साख्त की है और लंदन की बनी हुई है। मानना पड़ेगा, ये अंग्रेज लोग अपने कारखानों में जो चीज बनाते हैं कमाल की बनाते हैं। जाहिर है ऐसे में जमीला कब पीछे रहने वाली थी। उसने भी बढ़कर तीसरी स्टेन गन उठा ली और रुखसाना के पास ले आई। उसने शायद जिंदगी में पहली बार ये हथियार देखा था, इसलिए उनकी हैरत और इश्तियाक दीदनी था। बिलाखिर जमीला ने ही अपना रद्द अमल जाहिर किया। बोली, ये बंदूक देखने में तो छोटी सी है लेकिन बहुत भारी है, 4 सेर वजनी तो होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये सब मशीन गन है, इसे स्टेन गन कहते हैं। ठोस फौलाद की बनी हुई है इसलिए भारी तो होगी, और इसकी छोटी जिसामत से धोखा न खाना। ये इंतहाई तबाहकुन हथियार है। ये एक एक करके गोली नहीं चलाती बल्कि घोड़ा दबाते ही गोलियों की बरसात कर देती है। यानी इससे चंद सेकंड में एक साथ लगातार 32 गोलियां फायर की जा सकती हैं। यूं समझो कि अकेला बंदा अच्छी खासी फौज को मार गिरा सकता है। मेरी बात सुनकर रुखसाना की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। उसके मुकाबले में जमीला कदरे कम मरूब दिखाई दे रही थी। उसने फौरन ही जहानत से भरपूर सवाल दाग दिया। बोली, फिर तो ये बहुत जल्दी खाली हो जाती होगी और इसे दोबारा भरना पड़ता होगा। निशाना ठीक न लगा तो समझो अपना काम तमाम। उसकी बात सुनकर मैंने तहसीन आमेज कहकहा लगाया। जहीर और यासिर ने भी मेरा साथ दिया। जहीर ने बोरी से स्टेन गन के मैगजीन निकाल कर जमीला को दिखाते हुए कहा, ये गन लड़ाई के दौरान रुककर बार बार लोड नहीं करनी पड़ती मोहतरमा। इसमें ये गोलियों से पहले से भरे हुए मैगजीन लगते हैं। जैसे एक मैगजीन खाली होता है, इसे हटाकर 1 सेकंड में नया मैगजीन लगाते हैं। ये 2-3 मैगजीन किसी अच्छी खासी पलटन का सफाया करने के लिए काफी है। हमने खामखा तो इतनी भारी रकम नहीं दी इनके लिए। पता है इनमें से हर एक 2000 रुपए में पड़ी है। ये सुनकर उन चारों के चेहरों पर हैरत के आसार उभरे। मैंने कहा, ये वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि हमने ये कीमत दरअसल राजदारी की अदा की है। हमें बगैर किसी उलझन के ये असलहा मिल गया है और फरोख्त करने वाला भी भारी माल कमाने पर खुश है। अब हमें उसकी तरफ से किसी मुखबरी का खौफ नहीं। उन्होंने आंखों ही आंखों में मेरे मौकिफ की तायद की। जहीर ने उन्हें बताया कि हम एक विलायती रिवॉल्वर और भारी तादाद में एमुनिशन भी खरीद कर लाए हैं। जहीर ने अपने कब्जे में मौजूद रिवॉल्वर दिखाया तो नासिर की राल टपकने लगी, लेकिन जहीर ने उसे सिर्फ गन के लम्ब से लुत्फानंदोज होने की इजाजत दी। उन दोनों ने मिलकर रिवॉल्वर के अलावा तमाम असलहा एक बार फिर नफासत से बोरी में पैक कर दिया। मैं अपने बदले हुए रूप से जान छुड़ाकर फारिग ही हुआ था कि रुखसाना ने बताया कि खाना तैयार है। ये सुनते ही जहीर सब कुछ छोड़कर उठ खड़ा हुआ। बोला, इससे ज्यादा इंतजार तो मुझसे नहीं होता, खुदा के लिए जल्दी से खाना लगा दें वरना। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, यार ऐसी भी क्या बेसब्री है, कम से कम हाथ तो धो लो। आधे पंजाब की खाक धूल फांक कर आए हैं,
ज़हीर ने कहा, दस्तरखान की तरफ जाते हुए रुक कर धो लूंगा। यकीन करें अगर असलहा साथ न होता तो मैं जालंधर में ही गाड़ी रोक कर खाना मंगवा लेता। उसकी हालत देखकर सब हंस रहे थे, लेकिन वो कतन शर्मिंदा दिखाई न दिया। रुखसाना ने बताया कि वो मददगार खातून को सालन गर्म करने और रोटियां डालने का कहकर आई थी। खाना दस्तरखान पर हमारा मुंतजर होगा, उसने दुरुस्त कहा था। 2 ही मिनट के बाद हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। उन्होंने कश्मीर का मकबूल खाना रोगन जोश तैयार किया था, जो भूख के आलम में गर्मा गर्म रोटियों के साथ कुछ ज्यादा ही मजे का लगा। खुसूसन ज़हीर तो कुछ ज्यादा ही रग़बत से हाथ चला रहा था। खाने के बाद चाय पीते हुए यासिर ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, आप लोगों ने ये तो बताया ही नहीं कि रास्ते में पुलिस वालों से टाकरे से परेशानी तो नहीं हुई? लुधियाने से यहाँ तक मुझे तो जगह जगह आरजी पुलिस चौकियां और नाके दिखाई दिए हैं, और मैं मुसलसल आप लोगों की सलामती के लिए दुआ गो रहा हूँ। यासिर की इस इंतहाई संजीदा बात पर ज़हीर ने बेसाख्ता बुलंद आहंग कहकहा लगाया तो वो चारों हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। बल्कि यासिर ने तो अपनी चाय की प्याली तपाई पर रख दी। उसने तशवीश भरे लहजे में पूछा, खैरियत तो है ज़हीर भैया? ये अचानक आपको क्या हो गया? ज़हीर ने खुद को संभालते हुए बदस्तूर शगुफ्ता लहजे में कहा, क्या बताऊं यासिर भाई, क्या कमाल अदाकारी का मुजाहरा करते हैं अपने जमाल भैया। यहाँ से कपूरथले तक जगह जगह बार बार पुलिस चौकियों और नाकों पर हमारी गाड़ी रोकी गई है, लेकिन हर मर्तबा पुलिस वालों के सवालों का जवाब देने के बजाय मिट्ठू सिंह की खुशनुदी के लिए शुरफा की राह खोटी करने पर हमारे कुंवर जी ने गरीब संतरियों और हवालदारों से इतनी बुरी तरह डांट टपट की है कि छान फटक करने की बजाय उन सबको अपनी पड़ गई और उन्होंने मजीद कुछ पूछे बगैर आगे बढ़ जाने की इजाजत दे दी। उसकी बात सुनकर वो चारों कहकहे लगा रहे थे। जमीला ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, वैसे उन चारों का भी कसूर नहीं। इतनी महंगी और आलीशान गाड़ी और उससे भी ज्यादा आलीशान मूंछों वाली दबंग शख्सियत को देखकर वो तो पहले ही से सहम जाते होंगे। कमाल शक्ल बदली थी जमाल भाई आपने। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शक्ल में तो मामूली तब्दीलियां की थी, उन्हें मरूब करने में गाड़ी और मेरा लिबास, जेबी घड़ी और छड़ी वगैरह ने ज्यादा अहम किरदार अदा किया। बहुत से नाकों पर तो किसी ने कुछ पूछने की जुर्रत ही न की। ज़हीर ने कहा, कुंवर जी ने पुलिस वालों से ज्यादा शक्ति बब्बर को मरूब किया था। यूं समझे कि इनकी बारूब और गंभीर शख्सियत के सामने बेचारा शक्ति अपनी सारी शक्ति खो बैठा। ऊपर से कुंवर जी ने अपनी दौलत और असर रसूख की ऐसी धाक बिठाई कि वो बेचारा चाहने के बावजूद कोई काबिल जिक्र मज़ाहमत किए बगैर इनकी हर फरमाइश मानता चला गया। मैंने उसकी तायद करते हुए इजाफा किया और कहा, कुंवर जी की शख्सियत का रूब और दबदबा अपनी जगह, लेकिन माल की मुंह मांगी कीमत देने की यकीन दहानी ने उसे जल्द हथियार डालने पर मजबूर किया। रही सही कसर उस पोशीदा धमकी ने निकाल दी कि सरकार दरबार में भारी असर रसूख रखने वाले कुंवर जी की दिल शिकनी का नतीजा खराब निकल सकता है। ज़हीर ने तो मुझे महाराजा पटियाला यदविंदर सिंह का ससुराली रिश्तेदार बना दिया था। नासिर ने कहा, अब मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि आप दोनों ने इतने बड़े बड़े कारनामे कैसे सरंजाम दिए होंगे। ये सब माहिराना हरबे तो एक तरफ, इतने खतरनाक हालात में इतना लंबा फासला तय करने का तसव्वुर ही मेरे जैसे बंदों का खून खुश्क करने के लिए काफी है। उसकी बात सुनकर जमीला ने शोख लहजे में कहा, हिम्मत और जुर्रत तो खैर कुदरत की तरफ से होती है, बंदा कम से कम मुश्किल हालात से निपटने के तरीके तो सीख ही सकता है, लेकिन आपका भी कसूर नहीं। आड़त के लिए कौन सा इन चीजों की जरूरत होती है। जमीला की बात सुनकर नासिर बुरी तरह झेंप गया। मैंने उस शरारती लड़की के चुभते हुए जुमले पर उसकी शर्मिंदगी की शिद्दत कम करने के लिए मौजू बदला। मैंने कहा, नासिर, अब ज़हीर से मशवरा करके ये हथियार जल्द से जल्द किश्तवाड़ पहुंचाने का बंदोबस्त करो। इनकी यहाँ मौजूदगी टाइम बम की तरह है। ज़हीर भी सवालिया नजरों से नासिर की तरफ मुतवज्जे हुआ। शर्मिंदगी से निकालने वाली मेरी इस मुदाखलत पर नासिर ने यकीनन सुकून का सांस लिया होगा। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, आप फिक्र न करें जमाल भाई, उस ट्रक में बनवाया हुआ खुफिया खाना अब भी मौजूद है, ये सब माल उसमें आ जाएगा। अपना प्रोग्राम तय कर लें, आप लोग जब कहें उस ट्रक को खुश्क मेवों की रसद लेने किश्तवाड़ रवाना कर दिया जाएगा। मैंने कुछ सोचकर ज़हीर से पूछा, तुम जब पिछली खेप लेकर गए थे तो रास्ते में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई थी? मेरा मतलब है माल पकड़े जाने का कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ? ज़हीर ने नफी में सर हिलाया, ताहम उसकी बजाय यासिर ने मेरे सवाल का जवाब दिया। वो बोला, जमाल भाई, हम लोगों की गाड़ियों का कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आना जाना लगा रहता है। खुसूसन सर्दियों के मौसम में तो ये तसलसल मजीद बढ़ जाता है। रास्ते में वाक़े पुलिस चौकियों वाले अक्सर अहलकार हमारी गाड़ियां पहचानते हैं, क्योंकि हम हर फेरे में उनका नजराना बिला तारुज उन तक पहुंचाते रहते हैं। लिहाजा खाली ट्रक में कोई झांकने की भी जहमत नहीं करता।
ज़हीर क्लीनर के भेस में साथ गया था तो किसी पुलिस वाले ने इस पर दूसरी नजर डालने की भी जहमत न की थी। 100 बात की एक बात, नागहानी पर तो किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन बज़ाहिर कोई खतरा नहीं है। मैंने उसकी बात सुनकर इत्मीनान के इजहार के लिए सर हिलाया और फिर ज़हीर से सवाल किया, अब तुम बताओ कि तुम ये खेप कब किश्तवाड़ ले जाना चाहते हो? ज़हीर ने कहा, मेरा बस चले तो मैं अभी निकल पड़ूं, लेकिन मैं पहले शाजिया की बाजियाबी की मुहिम में शामिल होना चाहता हूँ। ये हथियार यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, ये अभी वहाँ पहुँच जाएं या 8-10 दिन के बाद कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, यार ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि हम श्यामक की गर्दन पकड़ने के लिए फिलहाल पटियाले का रुख नहीं कर सकते। तुम रास्ते में पुलिस वालों की मुस्तैद नफरी तो देख ही चुके हो। पटियाले के रुख पर तो वो और भी ज्यादा चौकस होंगे और ऐन मुमकिन है गाड़ियों और मुसाफिरों के कवायफ की छानबीन और उनकी जामा तलाशी भी ली जा रही हो। ज़हीर ने मेरी तायद में सर हिलाया और फिर सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, मेरा मशवरा ये है कि तुम कल ही अपने माल गनीमत समेत किश्तवाड़ रवाना हो जाओ। अपना सामान मंजिल पर पहुंचाकर 3-4 दिन में तुम्हारे वापस आने तक मामला मजीद ठंडा पड़ जाएगा। फिर हम दोनों भाई कोई अच्छी सी हिकमत अमली बनाकर अपने मिशन पर निकल पड़ेंगे। ज़हीर ने मेरी राय से इत्तेफाक किया। मुझे उसके लहजे पर गंभीर संजीदगी छाते देखकर हैरत हुई। कदर तवक्कुफ के बाद उसने बारी बारी हम सब पर निगाह डाली और भारी लहजे में कहा, हो सकता है मेरी बात आप सबको बेमौका लगे, लेकिन हकीकत तो यही है। अगर श्यामक से मालूमात उगलवाने की कोशिश में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऊपर रवानगी का हुक्म आ गया तो ये असलहा मेरे साथियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हमारे चेहरों पर उभरते उदासी और दिलगिरी के आसार देखकर उसने अपना लहजा खुशगवार बनाते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, वैसे भी असलहे की ये खेप मैं इसलिए भी जल्द अज जल्द किश्तवाड़ पहुंचाना चाहूंगा कि इस तरह मैं काफी अरसे के लिए अपने साथियों के पास एमुनेशन की कमी की फिक्र से आजाद हो जाऊंगा। हो सकता है कुछ मजीद हुर्रियत पसंद मेरे साथियों से आन मिले हों और उन्हें हथियारों की कमी का सामना हो। मैंने माहौल का तनाव दूर करने के लिए कहा, तो भाई फिर देर क्यों करते हो? वैसे भी तुम्हारा इलाका तो इन दिनों बर्फ से ढका हुआ होगा, मौसम से लुत्फानंदोज होने का मौका भी मिलेगा। ज़हीर के कुछ कहने से पहले जमीला बोल पड़ी, बर्फबारी मैंने कभी देखी तो नहीं, लेकिन दिल में बहुत शौक है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगले ट्रिप पर नासिर तुम्हें क्लीनर बनाकर भेज देगा। मौसम का मजा लेने के साथ ट्रक की सफाई सुथराई और देखभाल का तजुर्बा भी हो जाएगा। मेरी बात सुनकर सब ने कहका लगाया। ये अलग बात है कि वो ढीठ लड़की सबसे जोर से हंसी थी। उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त है कि आप मेरे चेहरे पर भी वो मोटी सी ऊपर मुड़ी नोकों वाली मूछें लगाकर क्लीनर बनाएंगे। उसकी बात पर एक और कहका बुलंद हुआ। मैंने जमीला को कहा, वादा रहा, तुम्हें इतना खतरनाक किस्म का मुच्छड़ बनाऊंगा कि लोग तुम्हें डाकू समझकर डर जाएंगे। पिस्तौल चलाना तो तुम्हें आता ही है, चाहो तो यही धंधा अपना लेना। वो हरी मिर्च सिफत की लड़की कब चुप रहने वाली थी। उसने पटाख से जवाब दिया, पिस्तौल चलाने से बात थोड़ी बनेगी, आपको मुझे बंदूक और स्टेन गन चलाना भी सिखाना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक स्टेन गन और शॉट गन यहीं रोक लें, मैं मश्क करूंगी। यह सुनकर ज़हीर ने घूर कर जमीला को देखा और फिर असलहे वाली बोरी को पीठ के पीछे करके जमीला को अपना रास्ता नापने का इशारा किया। उसी तरह की खुशगपियों में रात का दूसरा पहर शुरू हो गया। नासिर का कहना था कि वो कल ही खुफिया खाने वाला ट्रक बुलवा लेगा और रात होते ही उसमें असलहे की खेप लाद कर किश्तवाड़ रवाना कर देगा। बिलाखिर इस खुशगवार महफिल का इख्तिताम हुआ और सब अपने अपने ठिकानों पर सोने चले गए। ज़हीर ने असलहे वाली बोरी खास तौर पर अपने पलंग के नीचे रखी थी। उसका कहना था कि उसे आज निहायत खुशगवार नींद आएगी और वाकई वो बिस्तर पर लेटने के बाद बहुत जल्द गहरी नींद सो गया। मैंने भी सोने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बेइख्तियार आगे के बारे में सोचने लगा। मुझे कई दिनों तक वहां कैदी बनकर बैठे रहने के ख्याल से उलझन हो रही थी। मैं आज दिन के तजुर्बे की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंचा था कि उम्दगी से हुलिया बदलकर सफर करने में इतना ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि पंजाब की बेशतर पुलिस अभी तक तफ्तीश और छानबीन के जदीद तरीकों की कुछ ज्यादा सुध-बुध नहीं रखते। कुछ बदउनवानी और नाअहली भी पुलिस की कारकर्दगी को नाकिस बना देती है। ऐसे में अगर मैं हुलिये में मुनासिब तब्दीली करके अवामी सवारी के जरिए अमरदीप के गांव का रुख करूं तो कुछ ज्यादा खतरा दरपेश नहीं होगा। मैं इतने दिनों से उनकी जीप लेकर गायब हूं, कम से कम अमरदीप तो शदीद तशवीश में मुब्तला होगा। उन्हें अपनी खैरियत का इत्मीनान दिलाना मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है। जीप की गैर मौजूदगी का तो कोई भी मुनासिब बहाना बनाया जा सकता है। ये सब सोचकर मैंने फैसला किया कि कल नहीं तो परसों सुबह मैं भी छाजली गांव की तरफ रवाना हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे भी रफ्ता रफ्ता नींद आ गई।